Good morning, students. Welcome to your today's English class. How are you all? Good. So, shall we start today's English class? So, students, in today's English class, we are going to start the new chapter from your English grammar textbook. The name of this chapter is Use of A and the. It's unit number 11 from your English grammar textbook. So, basically, in this chapter, we are going to study when to use article a and the. These are nothing but the articles. There are three articles: a and the. You must have learned about the articles in previous class as well. Now in this class we are going to revise the use of a and the. आपको पहले से पता होगा कि आर्टिकल्स क्या है और कब कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, बट अब इस साल क्लास 2 में हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन टू यूज़ आर्टिकल ए एंड एन. ए और एन में से कौन सा आर्टिकल कब कब यूज़ करना है ये आज हम सीखने वाले हैं. ओके, कब ए लगाना है और कब एन लगाना है. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू study the use of article the, when we supposed to use the article the while writing the sentences, that we are going to discuss in next class. So in today's class we are going to discuss about when to use a and article and. Okay, so shall we start? So students, look at this picture carefully. So what they have given us few examples when to use a and when to use an. So basically these articles a and an are indefinite articles. Non-specific articles mean they will not specify the noun about which we are talking. It is in general we are going to use a and an. Non-specific या indefinite, we don't know about whom we are talking. जैसे जो जिस नाउन के आगे ये आर्टिकल्स आने वाले हैं ए और एन, वो इनडेफिनाइट ऑब्जेक्ट्स होंगी या इनडेफिनाइट नाउन होगा. कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं होगा वो नाउन, उसके आगे हम ए और एन लगाते हैं. और मोस्टली वी यूज़ ए एंड एन आर्टिकल्स फॉर दिस सिंगुलर नाउन्स. अगर नाउन सिंगुलर है और नॉन स्पेसिफिक है तो कौन सा आर्टिकल आने वाला है? ए और एन. कौन से दो आर्टिकल आएंगे? इफ़ योर नाउन इज सिंगुलर एंड नॉन स्पेसिफिक और इनडेफिनाइट. नॉन स्पेसिफिक इनडेफिनाइट नाउन मतलब जैसे जनरली गर्ल मतलब कोई भी गर्ल हो सकती है. जैसे हो गया कि बॉल मतलब कोई भी बॉल हो सकता है. ऑरेंज मतलब यू डोंट नो कि ये बास्केट में, इफ़ देर इज़ अ बास्केट फुल ऑफ ऑरेंजेस एंड इफ़ यू आर सेइंग गिव मी एन ऑरेंज, that means you can pick any orange out of that basket, any of the orange out of that basket which is full of oranges, है ना. So that is why we are saying we use article a and an for the singular nouns and non-specific nouns या indefinite nouns. सो लेट्स सी अब ए और एन में से कौन सा आर्टिकल कब यूज़ करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. आउट ऑफ ए एंड एन, व्हेन वी आर सपोज टू यूज़ ए एंड व्हेन वी आर सपोज टू यूज़ एन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहले तो पता चल गया कि ए और एन कब यूज़ करना है. कब यूज़ करना है ए और एन? व्हेन योर नाउन इज सिंगुलर एंड नॉन स्पेसिफिक. सिंगुलर एंड नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी एक ही चीज़ है बट स्पेसिफिक नहीं है. स्पेसिफिक मतलब जैसे आप बोलोगे गिव मी द रेड एंड बिग एप्पल, तो गिव मी द रेड एंड बिग एप्पल मतलब मुझे बड़ा और रेड एप्पल चाहिए, है ना. बट आपको अगर कोई भी एप्पल चाहिए, बास्केट में रखे हुए एप्पल में से कोई भी एप्पल आपको पिक करना है, तो आप बोलोगे गिव मी एन एप्पल. सो स्पेसिफिक नहीं है, आपको कोई भी एप्पल चल जाएगा बास्केट में रखे हुए एप्पल्स में से. यू कैन पिक और चूज एनी एप्पल फ्रॉम दोज एप्पल्स विच आर केप्ट इन दिस basket. So that is why for non-specific or indefinite singular nouns we use articles a and an. Okay, now we will differentiate in between when to use a and when to use an.
कब कब हमने ए यूज़ करना है और कब कब हमने एन यूज़ करना है वो अब हम डिस्कस करेंगे. सो you all must have learned about when to use article a. So article a is used before the nouns which begin with the consonant, है ना. consonant होगा अगर कोई भी noun, if any noun is beginning with the consonant then we use the article a. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है a man, a lamp, a cat, है ना. and article a is also used with those words whose sound, whose starting or initial sound is a consonant sound. जैसे कुछ कुछ words है which begin with your vowel but their sound like the consonant. जैसे euro, यूरो की स्पेलिंग है EURO, तो यूरो की स्पेलिंग EURO है, बट उसकी जो साउंड आ रही है यूरो की फर्स्ट साउंड आ रही है य मीन्स वाई, है ना. वाई सेज य. सो दैट इज वाई इट्स initial sound or starting sound is consonant sound. That's why we will not say an euro, we'll say a euro. a university, यूनिवर्सिटी के आगे भी देखो आप यूनिवर्सिटी की भी साउंड, यूनिवर्सिटी इज बिगनिंग विथ योर वॉवल. यूनिवर्सिटी की जो स्पेलिंग है वो शुरू होती है यू से, बट द साउंड विच इज कमिंग इन द बिगनिंग ऑफ दैट वर्ड दैट इज यूनिवर्सिटी. यू इज द starting or initial sound of that word and you is the sound of consonant. यू किसकी साउंड है, यह किसकी साउंड है, यह साउंड है consonant y की. y is the consonant and that sound is sound of the consonant. That is why we will use article a. a university, an university कभी भी नहीं आएगा, a university a euro आएगा. so this article a is used for the words beginning with the consonant sound. So remember, consonant sound भी important है and word beginning with the consonant is also important. If your word is beginning with the consonant and if your word beginning with the consonant sound, then also we use article a. अभी next आएगा an. When to use article an? तो हमने an कब use करना है? So we use article an for the words that begin with the vowel sound. ये जो article an है ये कब कब यूज़ करते हैं, जब हमारा word या noun जो है वो vowel sound से begin होता है या vowel से begin होता है. So you all must be knowing how many vowels are there. There are 5 vowels and which are they? They are A, E, I, O, U. अगर हमारा जो word है या noun है इसका first letter vowel है, जैसे A for apple हो गया, है ना, आई फॉर आइसक्रीम हो गया. सो अगर इनिशियल लेटर फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ योर वर्ड इज विद द वॉवल देन यू कैन यूज आर्टिकल एन. और इसमें भी वॉवल का साउंड भी आ रहा है, अगर स्टार्टिंग साउंड इज द साउंड ऑफ वॉवल देन ऑल्सो यू हैव टू यूज द आर्टिकल एन. जैसे एन ऑनर, है ना, एन ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST, ऑनेस्ट, है ना, HONEST. हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते उसको. सो साउंड जो है वो वॉवल की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है. ऑनेस्ट, ओ से ओ की साउंड होती है ऑ. सो इट इज दिस इज वाई वी यूज आर्टिकल एन बिफोर ऑनेस्ट. एन ऑनेस्ट पर्सन. सो ऑनर की स्पेलिंग भले ही हम एच से स्टार्ट कर रहे हैं, आर की स्पेलिंग भले ही हम एच से स्टार्ट कर रहे हैं, HOURR, बट साउंड में व्हेन वी प्रोनाउंस वर्ड आर वी से द फर्स्ट साउंड ऑफ आर. आ की साउंड आ रही है पहले, आवर, इसलिए इट इज़ द साउंड ऑफ वॉवल. दैट्स वाई we say an hour. We don't say a hour, we say an hour. That's why whenever your word is beginning with the vowel or your word is having the beginning sound of vowel sound, then you use article an. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला. और आपको अगर नाउन का फर्स्ट साउंड वॉवल साउंड है तब भी आपने क्या लगाना है, आर्टिकल एन.
और सेम विद द आर्टिकल ए, नाउन सिंगुलर है एंड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट या बिगनिंग साउंड ऑफ योर नाउन इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, देन ऑल्सो यू यूज article A. Consonant sound and beginning with the consonant, article A. Vowel sound or beginning with the vowel, then also you use article an. Okay, and these two articles A and an are used for the singular nouns which are indefinite or non-specific. नॉन स्पेसिफिक इनडेफिनाइट सिंगुलर नाउन्स के लिए दो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन, और उनमें से भी ए कब लगाना है और एन कब लगाना है. ए यूज़ करते हैं जब आपका वर्ड इज बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड और द कॉन्सोनेंट, एंड आर्टिकल एन इज यूज्ड व्हेन योर वर्ड इज बिगनिंग विद द वॉवल साउंड और द वॉवल. जो वॉवल साउंड के कॉन्सोनेंट साउंड के मैंने एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर इज यू विच इज़ वॉवल बट साउंड इज ऑफ कॉन्सोनेंट. यू हो के भी वॉवल की साउंड नहीं आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसीलिए हम बोलते हैं अ यूनिवर्सिटी. और वॉवल साउंड वाला एग्जाम्पल क्या था, जैसे ऑनेस्ट पर्सन. सो ऑनेस्ट की स्पेलिंग शुरू होती है एच से, एच से शुरू हो रही मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही, बट साउंड किसकी आ रही है, अ की आ रही है, वॉवल ओ की साउंड आ रही है. दैट इज वाई अ ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे उस टाइम पे. जो साउंड हमें आ रही है ऑनेस्ट, अ इज द साउंड ऑफ वॉवल ओ, दैट्स वाई इट्स अ वॉवल साउंड. वी विल यूज आर्टिकल एन बिफोर ऑनेस्ट. एंड ऑनेस्ट एंड आवर की भी स्पेलिंग होती है HOUR, बट साउंड जो है वो वॉवल की है. दैट इज वाई वी विल यूज आर्टिकल एन, नॉट अ. एन आवर बोलते, आवर नहीं बोलते. ओके, so I hope you have understood when to use article A and when to use article an. Now we will discuss same thing from your chapter.